Good morning, students. So, today let us begin chapter 4, the treeless grasslands. Treeless grassland means बिना पेड़ के घास का मैदान. Okay. So, before we go to the text, let us solve the questions given in the Get Set Go. And in this Get Set Go, we will know more about the wheat producing region and about the wheat, where the wheat is produced in our country. So first number, let us see. Wheat is a food or cash crop. So students, if you have remember, which we have studied in class 4, cash crop and food crop, and if you remember, you can answer it easily. So wheat is a food crop. Okay, food crop. Then second number, so you can circle the food. The first number you can circle food. Okay, food. And number 2, Tamil Nadu or Punjab is the largest wheat producing state in India. So which do you want? Which you say, Tamil Nadu or Punjab? So Punjab is the largest wheat producing state in India. Okay. So second number, Punjab. You can circle Punjab. Okay. And third number, wheat grows best in cool and moist or hot and wet climate. So गेहूं की फसल के लिए किस तरह की जलवायु उपयुक्त होता है? कूल या मॉइस्ट एंड और हॉट एंड वेट. तो ठंडा और नमी वाली जलवायु या गर्म या गीला वाली जलवायु. तो गेहूं के लिए ठंडा और नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है. ओके, सो यू कैन सर्कल कूल एंड मॉइस्ट. कूल एंड मॉइस्ट. ओके. And number 4, north or south India is largely a wheat consuming region. Wheat consuming region. So most of the wheat producing areas in India are in the north region. Okay, like Punjab, Rajasthan, all these places, and other states are also there are. Okay, so in the fourth number you can circle north. Okay, so these states comes in the north region. Okay, so you can circle the north. So now let us come to the text, and in the first page the map is a given. Okay, in the map we can locate or we can see the continents of the world. So there are 7 continents in the world. Okay, so all the continents are being shown in the map. There is a Europe. Okay, North America, South America, Asia, Africa, Australia and Antarctica. So these are the continent of the world. Okay, and Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. Okay, so grasslands are large plains of grass. Okay, घास का मैदान सबसे बड़ा मैदानी घास का मैदानी इलाका होता है. ओके,
दे आर फाउंड इन वार्म एंड ड्राई प्लेसेस, और ये घास के मैदान वार्म और ड्राई, गर्म और सूखे जगहों में पाए जाते हैं। ठीक, इन दिस एरिया द रेनफॉल इज टू लिटल फॉर फॉरेस्ट्स टू ग्रो बट जस्ट एनफ टू प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम टर्निंग इनटू अ डेजर्ट। तो इन एरिया में बारिश बहुत कम होती है, पर पेड़ पौधे उगने के लिए पर्याप्त है, जिससे कि मतलब एरिया या जगह मरुस्थल और डेजर्ट में कन्वर्ट होने से बच जाती है। ओके, hence there are very few trees and bushes in a grassland। तो इस तरह से इन घास के मैदानों में बहुत कम पेड़ पौधे मिलते हैं और वे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, झाड़ियाँ वगैरह और कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन। सो टेम्परेट जोन, एंड यू जस्ट रिमेंबर in the class 4 we also studied about the zone, okay, temperate zone, torrid zone and frigid zone, okay, and frigid zone is located in the both the hemisphere, okay, north hemisphere and south hemisphere, and temperate zone is located between the frigid zone and torrid zone, okay, between frigid and torrid zone on both sides. Okay, so in the temperate zone it is medium, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंडा है। ओके, और ये घास के मैदान इसी टेम्परेट जोन में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंटिनेंट्स, और इन घास के मैदानों को दुनिया में जो अलग अलग कंटिनेंट में है जो घास के मैदान, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ओके, तो मैप 4.1 पेज नंबर 239 में दिखाया गया है, जहाँ पे कंटिनेंट्स हैं, वहाँ पे कंटिनेंट में ही ग्रास लैंड के मैदान का नाम भी है। ओके, so let us see the first point, the prairies. Okay, so let us see the prairies. Prairies. So students, prairies ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, ये नॉर्थ अमेरिका के घास का मैदान है। ओके, the prairies are a vast stretch of gently sloping temperate grassland in North America। तो prairies नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में लोकेटेड है और ये बहुत ही बड़ा है। ओके, prairies is a French word which means grassland। prairies ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में इसका मतलब होता है घास का मैदान, ग्रास लैंड। ओके, यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन इट। ओके, एंड नाउ लेट अस सी इट्स लोकेशन। द प्रेरीज एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ। तो प्रेरीज कनाडा से नॉर्थ में कनाडा से लेकर के साउथ में मैक्सिको तक फैला हुआ है। ओके, इट कवर्स द होल ऑफ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये ज़्यादा कवर करती है। ओके, फिर आते हैं इसकी लैंड, जमीन। ओके, भूमि कैसी है प्रेरीज में। The prairies were once covered with thick, tall grasses। एक समय प्रेरीज के घास के मैदान में बहुत ऊंचे ऊंचे
घास थे। ओके, एक समय बहुत ही ऊंचा ऊंचा घास हुआ करता था। टुडे दिस फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड्स आर द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और आज के समय में यही प्रेरिस का घास का मैदान एक सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन का मैदान बन गया है। ओके, द मिसिसिपी एंड द मिसौरी आर टू बिग रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस रीजन। और इस घास के मैदान से होकर के दो नदियां बहती हैं, और वो है मिसिसिपी और मिसौरी। ये दो नदियां प्रेरिस के घास के मैदान से बह के गुजरती है। ओके, और यहाँ की क्लाइमेट देखते हैं। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। द प्रेरिस हैव अ सेमी एरिड क्लाइमेट। ओके, सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक ना। द विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर शॉर्ट। और यहाँ पे जो विंटर शीत ऋतु होती है वो बहुत ठंडा होती है, और गर्मी ऋतु बहुत गर्म होती है। ठीक, रेनफॉल इज मॉडरेट। और बारिश यहाँ बहुत मीडियम रहती है। ओके, बारिश मीडियम रहती है, लगभग 52 to 70 सेंटीमीटर बारिश होती है। एंड ऑकर्स मोस्टली इन द समर सीजन। और ये बारिश ज़्यादातर गर्मी ऋतु में आती है। ठीक, नाउ लेट्स सी द वेजिटेशन। प्रेरिस की वनस्पति है ना। अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दिस ग्रासलैंड्स। और इस घास के मैदान में कई तरह के पौधे होते। ट्रीज आर रेयर इन द प्रेरिस। और इस प्रेरिस के घास के मैदान में पेड़ बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। ओके, एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स। और रिवर किनारे, नदियों के किनारे को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में पेड़ नहीं होते हैं, केवल नदी के किनारे में कुछ पेड़ रहते हैं। ग्रास ग्रोस क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड चेंजेस टू हे इन ऑटम्स। और घास ये बसंत ऋतु में बहुत जल्दी बढ़ती है। ओके, और पतझड़ ऋतु में ये घास सूख करके पुआल, सूखी घास की तरह हो जाती है, सूख जाती है। ओके, so students, I hope you are understanding the chapter. So rest of the points we will discuss in the next class. Till then, you do your study. Thank you.